Okay, people, in 8th standard we are going to start with a new chapter and that chapter will be resources. ठीक है, तो कल हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया था लेकिन कल थोड़ा सा काम चला था इसलिए पूरा नहीं हो पाया था. सो वी विल स्टार्ट विथ इट टुडे इटसेल्फ कि रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं. सो वी हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट रिसोर्सेज, राइट. व्हाट आर रिसोर्सेज? जिनको हम यूज़ कर सकें, ठीक है, जिनकी यूटिलिटी होती है, ठीक है. और किन्हीं भी चीज़ों के लिए हम रिसोर्सेज के लिए बहुत हाई पेमेंट करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए हम कोई पेमेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है. दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, विदाउट विच वी कैन नॉट सस्टेन आवर लाइफ्स. वाटर इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, लेकिन इनके लिए शायद हम कोई पैसा नहीं भरते हैं. वाटर के लिए तो हम पैसा भरते हैं, चलिए, लेकिन एयर के लिए हम कोई पैसा नहीं भरते हैं, ठीक है. दे आर ईजिली अवेलेबल टू अस. तो रिसोर्सेज होते क्या हैं? व्हाट आर रिसोर्सेज? हमारे जो रोज़ के जीवन में जो चीज़ें हमको लगती हैं, they are primarily known as resources. ठीक है, okay. So we will study what are resources, what is the meaning of the resource, what is its utility and what is its value. ठीक है, meaning of resource होता क्या है, what is resource, ठीक है, इसकी utility मतलब usefulness कितनी है and what is its value, उसकी value कितनी है, ठीक है. So अभी अगर आप देखोगे आपके resources क्या क्या हैं, look at all these things. We have clothes, we have utensils, we have books, we have food grains, we have honey. Do we consume all of them? Yes. We wear clothes, we read books, we prepare our food in utensils, we prepare medicines by honey or we take it directly as well, and we prepare food grains as well. So are these resources which are used by us? Definitely they are. ठीक है, ये हमारे resources हैं जो हम use करते हैं. Each of these has a use. That is why they are important. हर एक का भाई साहब अलग अलग यूज़ है and obviously all of them are important. ठीक है, okay. These are called as resources. ठीक है. So what is a resource? Anything which can be used by us. ठीक है, anything that can be used to satisfy a need is called a resources. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे किसी नीड को फुलफिल करती है या सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलेंगे रिसोर्स. Anything which has the capacity to fulfill our needs is called a resource. For example, let's say this is a house. Is this a resource? Yes, it is. It is giving you shelter. ठीक है. These are food. तो ये आपका एक लंच प्लेट है. तो is this a resource? Yes, definitely it is. It serves for your energy. Is this a resource? Clothes that you wear. So anything that can be used to satisfy a need is called a resource. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे किसी काम आ रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए एक नीड है, that is becoming a resource. Clear? Okay. Look around us and observe. We will be able to identify many types of resources. बहुत सारे types of resources हैं which we can identify. ठीक है. For example, water. Is water a resource? Definitely it is. By without water we cannot survive. ठीक है. Water is definitely a resource. And what else do we have? Electricity. Is electricity a resource? Yes, definitely it is भाई साहब. Electricity से हमारे जितने भी gadgets हैं वो चलते हैं. All the gadgets including fan, light, you see everything works on electricity. What else people? We have a rickshaw. Is this a resource? Definitely it is. ठीक है, आपका भाई साहब ट्रांसपोर्ट में ये रिसोर्स लग रहा है. Books, are they a resource? ठीक है. So all of them are water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. सब में भाई साहब एक चीज़ कॉमन है. क्या? They all have been used by you, so they have utility. ये सब चीज़ों को आपने यूज़ किया है तो इनकी यूटिलिटी है. यूटिलिटी मतलब यूज़फुलनेस. ठीक है, किस चीज़ का कितना यूज़फुलनेस है. ठीक है, देखो जैसे बुक्स है, आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड की बुक्स आपके अभी किसी काम की हैं नहीं, तो उनकी यूटिलिटी चली गई. कुछ चीज़ों की यूटिलिटी कैसी होती है, मतलब टाइम स्पेसिफिक होती है. जैसे 6th स्टैंडर्ड की बुक्स अभी आपके कोई काम की नहीं, 7th स्टैंडर्ड की बुक्स अभी आपके कोई काम की नहीं, 5th स्टैंडर्ड की बुक्स अभी आपके कोई काम की नहीं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए यूटिलिटी कुछ चीज़ों का टाइम स्पेसिफिक होता है. इलेक्ट्रिसिटी आपके हमेशा काम पे रहेगी. ठीक है, वाटर हमेशा काम पे रहेगी, रिक्शा भी भाई साहब ट्रांसपोर्ट है. सो सम थिंग्स हैव अ कोरिलेशन विथ टाइम व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी. ठीक है, ओके. सो दीज आर बेसिकली व्हाट? रिसोर्सेज. ठीक है, आपका वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा हो गया, बुक्स हो गया. ठीक है, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर. दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर. हेंस दे हैव यूटिलिटी. इनकी भाई साहब होगी यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब होती है क्या? यूजफुलनेस. ठीक है, यूटिलिटी मतलब होती है यूजफुलनेस. सो ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, सो ऑब्वियसली दे हैव देयर यूटिलिटी डिफाइंड.
ठीक है, एंड हेंस दे ऑल आर रिसोर्सेज फॉर यू, ठीक है, ओके। सो थिंग्स दैट बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। आपके जो चीजें होती हैं वो रिसोर्स तभी होंगी जब उनकी वैल्यू होगी। जैसे एयर आपके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको फ्री में है ना भाई साहब वो, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, तो व्हेन दे हैव अ वैल्यू, वैल्यू refers to the importance of a commodity due to its usefulness. Value means worth. Some resources have economic value, some do not. जैसे मैंने आपको बताया, देखो एयर हमारी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। हाउएवर इट डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप खरीदते नहीं हैं। आपको जितना मिलता है भाई साहब, बिल गेट्स को भी उतना ही मिलता है ना, धीरू भाई मतलब अनिल अंबानी को भी या मुकेश अंबानी को भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। इट हैज गॉट नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीबडी has the right to air and is consuming it without paying anything for it. So इसके लिए इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भाई साहब है ही नहीं, जीरो है, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। इसका देखिए इकोनॉमिक वैल्यू, इसको ये जैसे फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स आर नॉट फ्री, दे आर परचेस्ड, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब क्या होता है? वेर इन यू पे अ प्राइस फॉर द कमोडिटी, प्राइस फॉर द commodity. Economic value means that you are paying a price for the commodity, price for the purchase, ठीक है। So हो सकता है किसी चीज़ की बहुत यूटिलिटी हो लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। So यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू इसकी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। आपका एयर जो है तो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट डजंट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल से देखिए कॉइन्स बनता है, मेटल से फर्नीचर बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है? यस, बिकॉज मेटल्स को हम रॉ फॉर्मेट में निकालते हैं ज़मीन से और फिर उसको रिफाइन करके यूजेबल बनाते हैं। आपको ज़मीन के अंदर से लोहा जिस तरह से फर्नीचर में लगा हुआ वैसा नहीं मिलेगा, लोहा आपको इन द फॉर्म ऑफ एन ओर मिलेगा। उस ओर को आप रिफाइन करके क्या बनाएंगे? एक्चुअल लोहा बनाएंगे, ठीक है, और उससे आप फर्नीचर, रेलवे लाइंस, बीम्स जो भी हैं वो बनाएंगे, ठीक है। सो मेटल्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स को आपकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लोहा आप खरीदते हैं, ठीक है, दे आर परचेस्ड। अगर आपका ब्यूटीफुल कोई लैंडस्केप है वैसा एकदम मस्त में, एक टूरिस्ट स्पॉट है, पीपल आर गोइंग एंड विजिटिंग दिस प्लेस, ठीक है, इट हैज़ गॉट वाटर, माउंटेन्स। तो अभी देखो यहाँ पे जाने आने का खर्चा होगा लेकिन इस चीज़ को देखने का कोई खर्चा थोड़ी है, ठीक है। आप कोई भाई साहब वाटरफॉल देख रहे हैं, आप कोई सनसेट देख रहे हैं, आप किसी बीच पे मतलब समुंदर को देख रहे हैं। सो ऑल दीज आर नेचुरल सिनारियोज, यू डोंट हैव टू पे फॉर वॉचिंग दीज, है ना, इनके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, तो इसका भाई साहब कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, मे नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट देन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो मेटल्स, ये से भी हमारे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इससे हमारा मूड अच्छा होता है, इससे हमको अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है। सो बोथ आर, वन इज फुलफिलिंग आर इमोशनल नीड्स, ठीक है, एंड वन इज फुलफिलिंग आर मटीरियल नीड्स, वन इज फुलफिलिंग आर मटीरियल नीड्स। आप बोलेंगे इसकी ज़रूरत क्या है? आप ऐसा सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं पूरा कचरा से भरा हुआ है, तो आपका मूड कैसा होगा भाई साहब? तिलमिलाए जाएंगे आप, है ना, यू विल नॉट फील गुड, ठीक है। बास आ रहा है या मतलब भरा हुआ है कचरा, ठीक है, यू विल नॉट फील गुड। अगर ऐसा रहेगा यू विल ऑलवेज फील अ गुड, देयर विल ऑलवेज बी अ गुड फैक्टर, ठीक है, यू विल ऑलवेज फील गुड एंड यू विल बी एबल टू डू गुड थिंग्स एज वेल, ठीक है। आपका मूड ही खराब रहेगा तो आप भाई साहब अच्छा कैसे करेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस एंड दिस बोथ आर इंपॉर्टेंट। फॉर वन यू पे, फॉर वन यू डोंट पे, इट इज naturally available to you, ठीक है, it is naturally available to you. Some resources can become economically valuable with time, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम आते हैं। जैसे योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टेल। ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज मतलब घरेलू इलाज जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे चीज़ों के आप देखोगे घरेलू इलाज होते हैं और ये ग्रैंड मदर्स को मालूम रहते हैं, ज़्यादा करके नाना नानी दादी दादी को मालूम रहते हैं क्योंकि इन्होंने ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की हैं अपने टाइम पे, ठीक है। सो ये अगर देखोगे ये आंवला है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है,
जंगलों में पाई जाती हैं या इनको हम उगा भी सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव होम रेमेडीज। आज की तारीख में हम हर चीज़ पे मेडिसिन ले लेते हैं एंड वी क्योर आवरसेल्व्स, बट दीज होम रेमेडीज हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज की तारीख में इनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इनको आप खरीदते भी नहीं है और किसी के पास शायद इतना टाइम भी नहीं आए कि जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर आए और फिर अपने बीमारी का इलाज करें। पास वाली दुकान से हम एक टैबलेट लेकर आएंगे या कोई मेडिसिन लेकर आएंगे जिससे हम अपना इलाज कर लेंगे, वी पे फॉर इट, ठीक है। सो आज की तारीख में ये डाई आउट हो रही है, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। बाबा रामदेव का भाई साहब 4000 करोड़ का इंडस्ट्री है, ठीक है। हाउ इज ही रनिंग सच अ बिग एंड ह्यूज इंडस्ट्री, सच अ बिग एंड ह्यूज इंडस्ट्री की भाई साहब दूसरे जितने भी कंपनीज हैं वो सब घबरा गए उनसे, ठीक है। आपने देखा है कोलगेट का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, वेद शक्ति। वाई आर दे चूजिंग दिस काइंड ऑफ अ नेम? आज तक इतने सालों से कोलगेट चला आ रहा है, कभी भी ऐसा नाम उन्होंने नहीं चूज़ किया है, बिकॉज दे आर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स बाबा रामदेव्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वहाँ पे भाई साहब ऐसे, तो इसीलिए लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए दे आर एडवर्टाइजिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है भाई साहब, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग एनी प्रोडक्ट इज बैड और एनी प्रोडक्ट इज गुड, बोथ आर इक्वली गुड एंड बोथ आर इक्वली यूजफुल। जिसको जो पड़ता है वो खरीदता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी जंगल से कोई आयुर्वेदिक चीज़ को ला रहे हैं, उसको घर में मेडिसिन बना रहे हैं, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव जैसी इंडस्ट्री जब वो चीज़ बहुत मास स्केल पे करती है, उसके प्रोडक्ट्स पैकेज करती है और बेचती है, तो लाखों करोड़ों का फायदा होता है, ठीक है। सो वंस इट इज़ पैकेज्ड एंड वंस इट इज़ द प्राइस इज फिक्स्ड एंड सोल्ड, देन इट बिकम्स वेरी हाईली इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। बहुत हाई उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है, ठीक है, वेरी हाई इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। ओके, पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट फॉर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो पेटेंट मतलब क्या होता है, आपको किसी आइडिया और इन्वेंशन पे आपका एक्सक्लूसिव राइट, जैसे फिलिप्स का बल्ब है, ठीक है, या आपका किसी दूसरे कंपनी का कोई एंकर का कोई स्विच है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। पेटेंट मतलब आपका ही एक्सक्लूसिव राइट है उसमें, ठीक है, टू प्रोड्यूस दैट थिंग। कैनन का कैमरा है भाई साहब, दे हैव गॉट द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस दिस थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेटेंटेड एंड सोल्ड। जैसे आपने जड़ी बूटियाँ लाई, जड़ी बूटियों से दवाई बनाई और बाबा रामदेव के नाम से वो छप गया और बिक रहा है, तो बाबा रामदेव हैज गॉट एक्सक्लूसिव राइट ऑन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। उस पर्टिकुलर मेडिसिन पे उनका एक एक्सक्लूसिव राइट है। पेटेंट मतलब होता है ठप्पा, ठीक है। पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। किसी भी आइडिया या किसी भी इन्वेंशन पे जो एक्सक्लूसिव राइट होता है उसको हम बोलते हैं पेटेंट, और इस पे एक लॉ होता है, ठीक है। ओके, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। तो जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो हमारे चेंज होते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। अभी देखो जैसे ये फील्ड था, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, हमने भाई साहब ट्रैक्टर्स यूज़ किए, हमने मिक्स फार्मिंग यूज़ की, ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया। ये सब टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी पैमाने पे क्रॉप्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऑन अ लार्ज स्केल व्हाट आर वी डूइंग, on a large scale what are we doing, we are basically producing crops by using what, technology, by using effective technology and what else, time, ठीक है। टाइम को भी हम यूज करें, टाइम इज व्हाट, टाइम को हम प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को प्रॉपर टाइम में। जैसे अगर आप बोलेंगे भाई साहब कि किसी क्रॉप का कोई सीजन है, उसमें हम नहीं उगाएंगे, दूसरे सीजन में उगाएंगे, होगा क्या वो, नहीं। हर क्रॉप का एक डिमांड है, सीजनल डिमांड होता है। कोई क्रॉप्स होते हैं आपके जो विंटर सीजन में होते हैं, कोई क्रॉप्स होते हैं जो आपके समर सीजन में होते हैं, कोई क्रॉप्स होते हैं जो आपके बरसात के सीजन में होते हैं। सो अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग टाइम और सीजन है। तो वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉपर टाइम टू कल्टिवेट इट एंड बाय अप्लाइंग टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर्स, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग या आपका हाइब्रिड सीड्स, ठीक है, या आपके प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ये सारे चीज़ों को अप्लाई करते हुए हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। तो फाइनली क्या होगा, सब्सटेंसेज विल गेट कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज, ठीक है, क्लियर है, ओके। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। लोगों को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, रिसोर्सेज की
और सब्सटेंसेस की भी, ठीक है, बोथ आर द नीड्स ऑफ द पीपल. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब क्या, जिसको आप यूज कर सकें, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होगा, पीपल. और लोगों की रिसोर्सेज, जैसे समझो कोई ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन में आप प्रॉपर इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है, आप हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ कर रहे हो, बेस्ट ऑफ सीड्स यूज़ कर रहे हो, फिर आप भाई साहब क्या कहते हैं, ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर कल्टीवेशन कर रहे हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो आप पूरी कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन होगा. अगर आप उल्टे सीधे टाइम पे उल्टे सीधे क्रॉप्स लगा रहे हो, भाई साहब आप ट्रैक्टर नहीं लगा रहे हो, मैनुअल लेबर कर रहे हो, ठीक है, आप जो है तो इरिगेशन के भी उल्टे सीधे तरीके अपना रहे हो, कहीं से नाला बना रहे हो, कहीं पे पानी पहुंच रहा है, कहीं पे पानी नहीं पहुंच रहा है, तो आपका ज़मीन होने के बावजूद भी आपका फ़ायदा नहीं होगा. एक जगह आपने 1000 टन प्रोड्यूस कर दिया होगा, दूसरी जगह पे आप 50 टन भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, है ना. आपने उस ज़मीन को ठीक से यूज़ किया ही नहीं, तो इसका मतलब आपको एक रिसोर्स मिला जिसको आपने इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो आपको वो बर्बाद हो गया. मतलब उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी को अगर आप ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो 1000 टन की जगह 50 टन क्रॉप ही मैन्युफैक्चर होगा भाई साहब, ठीक है. इसी तरह से हमारे ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और अभी आप पे टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों इन्वेस्ट हो रहा है. इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. ये जो तैयारी आप कर रहे हैं, ये जो आप एक एक क्लास में जाकर 7th 8th 9th 10th ये जो तैयारी आप कर रहे हैं, यू आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड टू फेस द वर्ल्ड, ठीक है. ये आपकी तैयारी है. जैसे एक ज़मीन को हम तैयार करते हैं, उसमें पानी देकर, उसमें ट्रैक्टर चलाकर, ठीक है, उसमें पेस्टिसाइड्स देकर, इंसेक्टिसाइड्स देकर वगैरह वगैरह, तब जाकर वो ज़मीन फ्रूटफुल क्रॉप्स बेयर करता है और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है. ये जो आपका पीरियड है वो एजुकेशन का पीरियड है, ठीक है. यू शुड बी टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट, क्योंकि एजुकेशन आपको सबसे ज़्यादा स्किल सेट देता है. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन है, लोग, ठीक है. तो हाउ डू वी इंश्योर दैट वी इफेक्टिवली यूज दिस रिसोर्स, बाई एडुकेटिंग देम, बाई गिविंग देम प्रॉपर स्किल सेट्स, ठीक है. उनको प्रॉपर स्किल सेट्स, प्रॉपर एडुकेशन अगर मिला, प्रॉपर फूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके देखो फूड प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एडुकेशन प्रॉपर होना चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर आप किसी को भी प्रोवाइड करेंगे, ही विल टर्न आउट टू बी अ वेरी वैल्यूबल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. स्किल सेट, ठीक है, स्किल सेट प्रोवाइड होनी चाहिए. तो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है. ओके, इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. तो उनके आइडियाज़ हैं, उनका नॉलेज है, उससे और ज़्यादा रिसोर्सेज हम क्रिएट करते हैं. वी बेसिकली क्रिएट मोर रिसोर्सेज आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. पहले हम भाई साहब क्या जलाते थे, दिया जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे. उसके बाद हमने देखा कि भाई साहब ये लाइट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हवा आएगी तो बुझ जाती है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं. तो व्हाट डू वी डू नाउ, ठीक है. अगर भाई साहब हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट, तो अगर बारिश हो रही है तो आप एक मोमबत्ती को जलाकर रख सकते हैं वहाँ पे, नहीं रख सकते. सो देन वी थॉट अबाउट अ बल्ब, और हमने इन्वेंट किया एक बल्ब. पहले हमारे ये वाले बल्ब चलते थे, आपने देखा है ये, ठीक है, येलो कलर का बल्ब होता था. ये टंगस्टन फिलामेंट होती है, काफ़ी हीट होता है इसमें. अभी हमारे भाई साहब एलईडी फॉर्मेट्स आ गए हैं, ठीक है. सो एलईडी फॉर्मेट्स में चेंज हो गया है. इसमें काफ़ी सारी पावर सेविंग भी हो जाती है और अच्छा खासा लाइट भी मिल जाता है. तो इस तरह से देख रहे हो आप कि एक इन्वेंशन दूसरे इन्वेंशन का बेस बन जाता है. रिक्वायरमेंट वॉज लाइट बट इट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड बाई डिफरेंट फॉर्मेट्स. रिक्वायरमेंट वॉज लाइट एंड दिस इज गेटिंग फुलफिल्ड बाय डिफरेंट फॉर्मेट्स. आपका फॉर्मेट चेंज होता रहता है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है. डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रही है. एक डिस्कवरी से दूसरा डिस्कवरी, एक इन्वेंशन से दूसरा इन्वेंशन, और ये चेंज चलता ही रहता है. और हमारी उस चीज़ की यूटिलिटी भी चेंज होती रहती है, ठीक है. सो पहले हमने लाइट को कैसे जलाया था, स्टोन एज में, when we were basically apes, we did what, आपने भाई साहब स्टोन्स को रगड़ कर लाइट जलाया, ठीक है. you were able to produce light. फिर उस लाइट से आपका क्या चेंज हो गया, you were with that light you started cooking food. इसके पहले हम भी जानवरों की तरह रॉ फूड खाते थे. we used to consume raw food, but after we invented light we started cooking our own food and that basically gave us more taste, ठीक है. तो धीरे धीरे अभी देखो, ये पहले तो हम ऐसे लकड़ियाँ जलाकर
ऐसे करते थे, अभी हम सेम चीज़ क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम प्रॉपर गैस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम रॉ फूड से किस में हो गए, प्रोसेस फूड में। वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटेड रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो व्हील से भाई साहब आपका क्या हो गया, हमको दिखा कि भाई बड़ी बड़ी चीज़ों को एफर्टलेसली हम व्हील से मूव करते हैं। समझ लो ये एक बड़ा सा रॉक है भाई साहब, ठीक है। तो अभी इसको मिलकर 50, 100, 150 लोग पुश कर रहे हैं, तब जाके ये आधा इंच हिल रहा है भाई साहब, ठीक है। बहुत बड़ा रॉक है। अभी इसमें हमने क्या कर दिया भाई साहब, अगर इसको थोड़ा सा उठाकर इसमें हमने ऐसे व्हील्स लगा दिए, व्हील्स लगा दिए मतलब लॉग्स ऑफ वुड लगा दिए। अभी इसको पुश करो भाई, फटाफट मूव होगा ये। पहले के ज़माने में कैसा होता था, ये निकल गया, फिर सामने से एक डाल रहे हैं, ये निकल गया, अभी ये फटाफट मूव हो रहा है भाई साहब, ठीक है। सो इवन वेरी बिग मासेस कैन बी मूव्ड इफ़ वी हैव व्हील्स। ये हमने डिस्कवर किया, और जैसे हमने डिस्कवर किया भाई साहब, हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स में व्हीकल्स बना दिए, ट्रेन्स बनाया, बसेस बनाए, 4 व्हीलर्स बनाए, यहाँ तक कि भाई साहब स्टीमर्स भी बनाए। इनके अंदर भी भाई साहब व्हील्स होता है, बिकॉज ऑफ विच दे मूव अहेड, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी डिड, वी बेसिकली इन्वेंटेड व्हील्स एंड दिस इन्वेंशन वाज पास्ड ऑन टू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ व्हीकल्स में पास हो गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो हमको कैसे, पहले देखो यहाँ पे एक नदी थी, ये नदी जा रही थी, हमने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे एक डैम बना दिया। जैसे हमने डैम बनाया, ये नदी भाई साहब कलेक्ट होने लगी, ठीक है, ये कलेक्ट होने लगी। अभी हमने क्या किया, इस पानी को जैसे ही छोड़ा नीचे, यहाँ पे मैग्नेटिक टर्बाइंस होते हैं, देयर आर मैग्नेटिक टर्बाइंस। ये बहुत ज़ोर से पानी जा रहा है तो ये घूमेगा, और जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से भाई साहब क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में जा रही है, ठीक है। वाटर का वेस्टेज नहीं हुआ, ठीक है। वाटर को हमने इफेक्टिवली यूज़ किया, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपका देखो ये डैम्स होते हैं, ये रिवर में हमने डैम बना दिया और इसको वाटर को बहुत ज़ोर से छोड़ते हैं। नीचे आपके भाई साहब क्या होते हैं, मैग्नेटिक टर्बाइंस होते हैं, ये भाई साहब घूमने लगते हैं। जैसे ये घूमने लगते हैं तो बहुत हाई मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू वेरियस पावर हाउसेज फ्रॉम वेयर इट रीचेज योर होम। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाई आर वी कॉलिंग इट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मीन्स वाटर। सो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर हैज़ टर्न्ड एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो जो भी फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, जो रिवर्स वगैरह होते हैं, जिनकी हाइट स्पीड होती है, ठीक है, दैट बेसिकली बिकम्स एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपके क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। तो एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं, एक होता है भाई साहब मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, सेलफोन्स हो गए, ये हमने बनाया है, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। तो एक हमको नेचर से मिलता है, जैसे जितने भी आपके मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, देन सनशाइन हो गया, देन आपका एयर हो गया, ये आपको नेचर से मिलता है, इसको आप मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। वुड हमको नेचर से मिला है, लोहा हमको नेचर से मिला है, हमने इसको दोनों को मिलाकर फर्नीचर बना दिया, ठीक है। ह्यूमन मेड, ये प्रॉपर ह्यूमन मेड है, मतलब जैसे आपका समझ लो इलेक्ट्रिकल गैजेट, सेलफोन हो गया, ठीक है, टैबलेट्स हो गए, तो दीज आर बेसिकली ह्यूमन मेड। और तीसरा होता है ह्यूमन खुद। ह्यूमन खुद भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। सबसे ज़्यादा काम का कौन होता है, इंसान, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगे, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमको नेचर से मिलता है और हम ऑलमोस्ट वैसा जैसा मिला है वैसा ही उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमको पानी मिला है, थोड़ा सा हम प्यूरिफाई करके उसको हम यूज़ करते हैं घरों में जो पानी आ रहा है, ठीक है, एज इट इज़ जैसा हमको मिला है। हवा तो हमको जैसे मिला है वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो विदाउट मच मॉडिफिकेशन वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, हम उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस ना लेके, तो इनको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। जिन चीज़ों को हमको नेचर से मिलता है और उसको बिना किसी ज़्यादा चेंज किए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। So let's look at natural resources. Air is one of the most important of all natural resources. Then we have water, ठीक है, it is an important natural resource. Then we have soil, important natural resource. Then we have minerals. तो ये सारी चीज़ें हमको मुफ्त में मिल रही है, मतलब है, थोड़ा पैसा तो देना पड़ेगा। सॉयल हो गया, तो ये सब चीज़ें हमको नेचर से मिली हुई हैं, ठीक है। नेचर ने कोई टैक्स हमको इस पर नहीं लगाया है, ठीक है। सो दीज आर अवेलेबल, एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, दीज आर अवेलेबल टू अस बाय नेचर। नेचर हमको दे रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है।
Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. बहुत सारे रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सॉइल को अगर आपको यूज़ करना है, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़मीन को तैयार करना पड़ेगा. मिनरल्स को भी आप भाई साहब निकालते हैं तो उसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है. एयर को आप विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं. पानी को आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन से यूज़ कर सकते हैं. पानी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, पीने के लिए और भाई साहब वॉशिंग के लिए भी यूज़ होता है. और प्लस आप अगर समझ लो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. आराम से भाई साहब बोट से आप जा सकते हैं, शिप से आप जा सकते हैं, ठीक है. ओके, मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. कहीं कहीं पे हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं. एक इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड, थोड़ा बहुत, टू कन्वर्ट अ नेचुरल रिसोर्स इनटू अ यूजेबल रिसोर्स. जैसे आपने लोहा भाई साहब ज़मीन से निकाला, आयरन, वो ओर फॉर्मेट में होता है, वो जाता है भाई साहब इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे उस आयरन की फॉर्मेटिंग होती है एंड इट बिकम्स यूजेबल, ठीक है. तो आपने क्या यूज़ किया भाई साहब? टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट आयरन ओर इनटू आयरन, ठीक है. आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ किया टू कन्वर्ट आयरन ओर इनटू एक्चुअल आयरन, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, आपने देखा रहेगा फिशिंग करते, बहुत जोर से नींद आ रही थी देखो, ठीक है. अगर कोई फिशिंग आप देखोगे तो कोई फिशिंग रॉड लेकर बैठा हुआ है, शायद पूरे दिन में एक मछली पकड़ पाए, ठीक है, तो पूरा दिन वेस्ट करना पड़ा हमको. लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज़ करें, एक बड़ा सा जाल लेकर जाएं और वो भी समुंदर में, थोड़ा डीप समुंदर में अगर हम जाएं तो हमको एक बार में ही भाई साहब बाल्टी बाल्टी भर के मछलियाँ मिल रही हैं, ठीक है. इफ़ यू आर इनटू फिशिंग बिजनेस, if you are doing fishing just as a hobby, it's a different thing, but if you are into a fishing business, then this is what you do, ठीक है. So in some cases tools and technology, कहीं कहीं पे आप अगर effective tools और technology को अपनाते हैं तो आप natural resources को better way में use कर सकते हैं, ठीक है. You can use the natural resources in a better way, ठीक है. जैसे soil है, देखो soil में irrigation कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पानी जा रहा है. एक तरीका क्या है भाई साहब, जहाँ से भी पानी आ रहा है वहाँ पे ऐसे नाले बना दो, लेकिन इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा और शायद क्रॉप्स को जितना पानी जाना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा. लेकिन आप अगर ऐसे छोटे छोटे पाइप्स लगा दो और उनमें ऐसे होल्स लगा के रखो, ठीक है, ऐसे पाइप, तो ये बराबर मतलब ऐसे घूम घूम कर पानी स्प्रे करेगा और बराबर पौधों को जितना पानी चाहिए, क्रॉप्स को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलेगा. ना ही पानी का वेस्टेज होगा और उल्टा जितना पानी चाहिए क्रॉप्स को उतना पहुंच जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड, थोड़ा सा हमने टूल्स, हमने एक नेचुरल रिसोर्स वाटर को यूज़ किया है. दूसरा नेचुरल रिसोर्स जो हमने यूज़ किया है वो है सॉइल, लेकिन हम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है. सो वी आर हेयर यूजिंग, यहाँ पे भी हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं एज अ नेचुरल रिसोर्स, उसमें से क्या निकाल रहे हैं? फिश, ठीक है. सो दीज आर सर्टेन यूज. तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या हो जाएंगे? देखो, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, देन ओरिजिन एंड देन वी हैव स्टॉक एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन. तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है. जैसे फिश है, फिश आपने पकड़ा, उसमें लेवल ऑफ डेवलप क्या करेंगे आप? उसमें कुछ और चेंजेस करेंगे क्या? नहीं, उसको काट कर पका कर खा जाएंगे, है ना. तो ये लेवल ऑफ डेवलप मतलब वो तैयार प्रोडक्ट है, ठीक है. आयरन और क्या तैयार प्रोडक्ट है? नहीं, वो ओर फॉर्मेट में है, उसको आपको प्रोसेस करके प्रॉपर आयरन बनाना पड़ेगा, तब उस आयरन से आप अलग अलग चीज़ें बनाएंगे. तो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग है, फिश का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग है, ठीक है. ओरिजिन कहाँ से हमको मिल रहा है, कितना स्टॉक है हमारे पास, कितना स्टॉक है. एक टाइम था जब हमारे पास वाटर एकदम भरपूर था, ठीक है, इट वॉज मोर देन एनफ. लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे कंट्रीज़ में वाटर ड्राई अप मोड में है, ठीक है. वाटर के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट यूज द रिसोर्स इफेक्टिवली, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस नेचुरल रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वंस वी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है. तो नेचुरल रिसोर्स में अभी लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? एक्चुअल एंड पोटेंशियल. जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअल लेवल पे होता है और उसका पोटेंशियल क्या है डेवलपमेंट का, ठीक है. सो एक्चुअल रिसोर्सेज, जैसे देखो यहाँ पे एक एक्चुअल रिसोर्स है, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन एक्चुअल रिसोर्स. इस तरह से ही दिखता है एक्चुअल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्स है दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, हमको इसका क्वांटिटी मालूम है, ठीक है, इसका क्वांटिटी मालूम है भाई साहब. जैसे द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी. जर्मनी में आपको दिख रहा है ये कोल है, कोल के डिपॉजिट्स हैं. These are rich deposits of coal in the rural region of Germany, ठीक है. बहुत ज़्यादा कोल वहाँ पे अवेलेबल है. ये सब गाड़ियाँ जा रही हैं देखो, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली कोल डिपॉजिट्स.
पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम निकाला जाता है ज़मीन से, ठीक है। वहाँ पे अगर आप अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वहाँ पे भाई साहब आपका जो पेट्रोल है वो पानी से सस्ता है, ठीक है, पानी से सस्ता है। वहाँ पे पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, ठीक है, क्योंकि पानी वहाँ पे उतना अवेलेबल नहीं है। सो अलग अलग चीज़ें, ओके। द डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, ये आपका डेक्कन प्लेटू है और ये डार्क सॉइल्स हैं, दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज। इनकी क्वांटिटी हमको मालूम है, कितना हम कितने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनकी क्वांटिटी मालूम है। ये हो गया एक्चुअल रिसोर्सेज। नाउ विल टॉक अबाउट पोटेंशियल रिसोर्सेज पीपल। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है भाई साहब? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे बी नॉट नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। अभी फिलहाल हमको इनका एंटायर क्वांटिटी नहीं मालूम है और अभी हम फिलहाल इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मतलब जिनका हम यूज़ भी कर रहे हैं उनको मालूम भी है इनकी क्वांटिटी कितनी है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज में लेवल ऑफ डेवलपमेंट में दो चीज़ें आती हैं। एक क्या हो गया आपका, व्हाट इज इट? एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जिनकी क्वांटिटी भी नोन है और जिनका यूज़ भी हम कर रहे हैं, जिनकी क्वांटिटी भी नोन है और जिनका यूज़ भी हम कर रहे हैं। दूसरा है पोटेंशियल, जिनकी क्वांटिटी हमको नोन नहीं है और जिनको अभी तो फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में यूरेनियम रिजर्व्स पाए गए हैं, यूरेनियम पाया गया है विच इज़ एन इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन हमने उसका यूज़ अभी चालू नहीं किया है। सो दैट इज़ वन थिंग, इट इज़ ए पोटेंशियल रिसोर्स। आगे चल के इसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है, आगे चल के हम बहुत सारे माइनिंग्स कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू यूजली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। आज की तारीख में जो हमारे पास मशीन्स हैं या जो हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है आज हम इन रिसोर्सेज को यूज़ ना कर पाएँ बट फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करो एट द राइट टाइम। जैसे मैं आपको बोलूँ, अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग नेशन, लेकिन वो फिर भी पुअर नेशन है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई बहुत बाद में कर पाए वो लोग कि गोल्ड क्या है। तब तक क्या हुआ, अफ्रीका में जितने भी दूसरे बिजनेसमैन आए उन्होंने अफ्रीकन लोगों से ही गोल्ड निकलवाया और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया, बिकॉज दे वेर अवेयर मार्केट कहाँ है, कितना पैसा मिलेगा, क्या इसका पर ग्राम या पर केजी वेट में कितना पैसा मिलेगा। दे वेर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ऑल दे नीडेड टू डू इज डिग आउट गोल्ड, प्रोसेस इट एंड सेल इट इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो अफ्रीकन्स को मालूम नहीं था। तो इन स्पाइट ऑफ सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन दे स्टिल टर्न्ड आउट टू बी प्योर, ठीक है, बिकॉज दे डिडंट हैव द नॉलेज। देखो, आप देखो ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम डेवलप करेंगे ना तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को अगर प्रॉपर स्किल सेट हमने दिया है, प्रॉपर नॉलेज हमने दिया है, तो वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको इफेक्टिवली यूज़ भी कर लेगा। तो अफ्रीकन्स में एजुकेशन की कमी थी, जिसके वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि गोल्ड पे वो बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू है। दूसरे लोग आए, उनसे ही काम करवाया, उनका ही गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बेचा और करोड़ों कमाए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस। पोटेंशियल रिसोर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्किल सेट से, अपने नॉलेज से, और जितनी जल्दी हम पोटेंशियल रिसोर्स को यूज़ में लाएंगे उतना हमको फ़ायदा, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आपने देखा कि यहाँ पे रिसोर्स है, लेकिन अभी तक आपके पास प्रॉपर मशीनरी या स्किल सेट नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू यूजली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। आज की तारीख में जो हमारे पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मे बी वी आर नॉट फिट इनफ टू यूटिलाइज, लेकिन ये आगे चल के हमको काम आने वाला है। तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपको, अगर आप अभी 8th में हैं और कहीं से आपको 9th की बुक्स मिल गई हैं या 10th की बुक्स मिल गई हैं, क्या करोगे? आप उसको बेच दोगे, कबाड़ी वालों को दे दोगे? नहीं ना, आप रख लोगे। कोई आपका भैया है, कोई आपका रिलेटिव है, उसने दे दिया आपको, 9th की बुक्स दे दी, 10th की बुक्स दे दी, तो आप उसको रख दोगे ना। आज काम में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के काम में आएगा। आज आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। तो इसके लिए आपके लिए वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल रिसोर्स। टुडे विद द स्किल सेट्स दैट यू हैव, यू कैन ओनली स्टडी 8th स्टैंडर्ड, वही आपके सिलेबस में है। शायद आप 9th और 10th की पढ़ाई ना समझ पाए, और दूसरी बात आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? वेट करोगे, जब आप 9th या 10th में जाओगे तब उसको यूज करोगे। तो ये हो जाएगा आपके लिए क्या? पोटेंशियल रिसोर्स। टुडे यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज इट, बट मे बी इन द नियर फ्यूचर यू विल बी यूजिंग इट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है।
The uranium which is found in Ladakh is an example of potential that can be used in future. तो हमने जो यूरेनियम फाइंड किया है लद्दाख में, ये एक हमारे लिए पोटेंशियल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है. वी कैन यूज़ इट इन फ्यूचर. आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है. हाई स्पीड विंड्स वेर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. आज हम विंड मिल्स लगाकर विंड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 200 साल पहले हमको ये मालूम नहीं था. तो हमारे लिए 200 साल पहले हमको मालूम था कि भाई बहुत ज़ोर से हवा आ रही है, क्या इस हवा को हम यूज़ कर सकते हैं. तो दैट वाज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर अस. वी डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ विंड मिल्स एंड ऑल, सो वी डिडंट नो हाउ टू यूज़ दिस विंड एनर्जी. टुडे वी नो इट. सो वी हैव, मतलब टर्बाइंस हमने सेट कर दिए, विंड टर्बाइंस हमने सेट कर दिए. ये विंड टर्बाइंस बड़े बड़े ऐसे होते हैं और खेतों में होते हैं, ये जोर से घूमता है और विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है. सो वी हैव विंड टर्बाइंस. हाई स्पीड विंड्स वेयर वंस अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. 200 साल पहले ये बहुत ही बड़ा पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे स्किल सेट या टेक्नोलॉजी नहीं था इन ऑर्डर टू कंसिडर इट एज अ रिसोर्स. आज हमने डेवलप कर लिया है, क्या, रडार्स डेवलप कर लिए, आपने भाई साहब विंड मिल्स डिज़ाइन कर लिए. तो आज आपके पास इस रिसोर्स को यूज़ करने के सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है. ओके, सो दैट वाज अ पोटेंशियल. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स. तो देखो, पोटेंशियल रिसोर्स कन्वर्ट होता है किसमें? एक्चुअल रिसोर्स में, जब आप उसको यूज़ करने लगते हैं. पोटेंशियल रिसोर्स मतलब आइडेंटिफाई करना कि हाँ भाई साहब फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल रिसोर्स में कब? जब आप उसको यूज़ करने लगते हैं, ठीक है. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म्स जनरेट यूज एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड, ठीक है. तो आप भाई साहब विंड फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े लंबे खेतों में आप विंड मिल्स डाल देते हैं, और ये विंड मिल्स क्या करते हैं भाई साहब? दे रोटेट एंड जनरेट अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है. यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट, ठीक है. गुजरात कोस्ट में भी हमने काफ़ी सारे विंड मिल सेटअप किए हुए हैं, जहाँ पे भी आपको खुला एरिया है ना भाई साहब, ठीक है, नागरकोइल एंड तमिलनाडु, जहाँ पे भी आपको खुला एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे आप विंड मिल्स स्टैब्लिश. जैसे यहाँ पे विंड मिल स्टैब्लिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्यों? चारों तरफ बिल्डिंग है भाई साहब, तो हवा को रुकेगा, खुली हवा चाहिए, ज़ोर से हवा चाहिए, तभी जाके विंड मिल्स इफेक्टिवली यूज़ हो पाएंगे. तो यू वुड नीड अ वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट लैंड